ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬਾਏ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੈਸਿਸ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਅਰਥ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ठीक है ना जी। ये है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस एमिटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इट ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना कि आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन। विच इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिशन वॉज डिजाइन टू स्टडी द सन। दसो जी केड़ा है। ये तो न्यूज़ भी बड़ा रहा सी, ये तो अपन पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, आदित्य L1। ठीक है ना। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन है टू स्टडी द सन। इट वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रेंजियन पॉइंट 1 L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दसो जी। साउंड ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੈਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ? ਡੈਸੀਬਲ। ਇਹ ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਲ ਹੈ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲੀਡਸ ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਰਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈंने ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਡੇਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਸਕॉर्बिक ਐਸਿਡ। ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਲੀਡਿੰਗ ਗਮਸ, ਵੀਕਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। What technology is used in the security tags attached to clothes in retail stores for tracking। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ RFID, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। uses electromagnetic fields to automatically identify and track tags attached to objects। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Which part of the human brain controls involuntary action like heartbeat and breathing। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੈਡੂਲਾ ਓਬਲਾਂਗਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। What is the process of converting a liquid directly into its vapor form below its boiling point called। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ where liquid turns into gas at any temperature below its boiling point। sublimation is solid turning directly into gas। ਕੋਈ solid ਸਿੱਧਾ ਗੈਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ sublimation ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ, ਆਪਾਂ sublimation ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ sublimation ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ solid ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਸਾਈਲ ਇਜ਼ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਕੋਂਟੀਨੈਂਟਲ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਅਗਨੀ 5 ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਨੀ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਅਰ ਟੂ ਏਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪੇਬਲ ਇੰਟਰਕੋਂਟੀਨੈਂਟਲ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ DRDO ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਰੇਂਜ ਆਫ ਓਵਰ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਵਿਚ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਨਵਰਟ AC ਇਨਟੂ DC। ਦੱਸੋ ਜੀ AC ਤੋਂ DC ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। AC ਤੋਂ DC ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ, ਅਤੇ DC ਤੋਂ AC ਇਨਵਰਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਕਨਵਰਟਸ AC ਵਿਦ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਰਿਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਵਿਚ ਫਲੋਜ਼ ਇਨ ਓਨਲੀ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਰ ਡਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਨਵਰਟਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
वट इज़ द फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसीपल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर दसो जी किहड़ी हुंदी है TIR हुंदी है रिफ्रैक्शन हुंदी है स्कैटरिंग हुंदी है कि इंटरफेरेंस हुंदी है तो हुंदी है टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन आप पढ़ते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर जिहड़े इंटरनेट वगैरह ते तारां लगदियां ने ऑप्टिकल फाइबर ध्यान च होएगा ठीक है जी। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन सौर मिल्क और कर्ड ये तो आप सबनों पता होएगा की हुंदा है दसो जी। तो यदा आंसर ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्मड इन मिल्क बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोबैक्यूलस बैक्टीरिया विच फर्मेंट्स लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड गिविंग कर्ड इट्स सोर टेस्ट ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं which is scientific term for the permanent memory stored in computer that cannot be modified easily दसो जी केड़ी है तो वो है ऑप्शन नंबर बी रोम रीड ओनली मैमरी स्टैटिक होंगी है नॉन वोलेटाइल होंगी दैट परमानेंटली स्टोर्स इंस्ट्रक्शन लाइक फर्मवेयर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। चलो जी अगला देखते हैं विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज द यूनीवर्सल डोनर दसो जी केड़ा यूनीवर्सल डोनर तो वह है यूनीवर्सल डोनर है BO नेगेटिव ठीक है ना जी। ओ नैगेटिव जोड़ा ब्लड कंटेन करता AB और RH एंटीजेंस ऑन द रेड ब्लड सैल्स ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੇ ਸੇਫਲੀ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੱਡ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਦ ਸਿੰਬਲ FE ਇਨ ਦ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੱਸੋ ਜੀ FE ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੋਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 50-50 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਗਾਓ ਜੀ नहीं पता तुक्का लाओ पता है तो सोच लो कि आंसर। चलो जी मैं आंसर दसना इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आयरन आयरन का की होंगे FE एफिन कितों है लैटिन वर्ड है वर्ड फेरम तो उसका मतलब कि होंगे आयरन ठीक है ना जी। चलो जी अगला देखते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज़ कॉमनली एक्सेलरेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मैंने पिछे जो भी करवाया जो किसी ने लैक्चर देखे ने तो उसको पता होएगा ठीक है ना जी। चलो देखते हैं की आंसर है तो इसका आंसर है इथाइलिन की है इथाइलिन ठीक है ना जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज्ड बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया दसो जी केड़ा जिन्होंने मायोपिया होंगे केड़ा लेंस यूज़ करता वो करता है ऑप्शन नंबर बी कनकेव लेंस ठीक है जी। मायोपिया कनकेव लेंस होंगे डिस्पर्स करता लाइट रेज नूं ते बिफोर दे हिट द आई ठीक है ना उस तो बाद जिहड़ा हाइपरमेट्रोपिया उहदे च कन्वैक्स लेंस होंदा है ये भी याद रखना ये भी पूछा जा सकता है ठीक है ना कई बार आंसर विचों ही ऑप्शन जरूरी नहीं है ना जो क्वेश्चन की फॉर्म में उही आ सकता है कई बार आंसर च भी कोई पॉइंट निकल के जो पूछ लिया पेपर से अपने तो चारों पासे तैयार रहना ठीक है ना जी। चलो अगला क्वेश्चन विच कंपोनेंट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल ये तो सबको पता होगा की है माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है ना जी। माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल ठीक है ना जी। निकनेम भी इज द पावर हाउस ये भी ध्यान च रखना। वट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ इंडिजीनियस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ये तो सबको पता होएगा की है नाविक की है नैविक की है फुल फॉर्म नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनली एज IRNSS इज़ इंडियाज़ इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ना जी ये भी याद रखना। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम दसो ये साउंड वेव कितों नहीं ट्रैवल करती तो वो नहीं करती वैक्यूम तो ठीक है ना जी। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं वट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंप्रेस्ड नैचुरल गैस दसो जी सबको पता होएगा CNG का केड़ा है CNG का है मीथेन ठीक है। CNG इज़ मेड बाय कंप्रेसिंग नैचुरल गैस विच इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ मीथेन। LPG ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट मेजरली ऑफ प्रोपेन ते ब्यूटेन जो LPG होंगे ना वो होंगे प्रोपेन ते ब्यूटेन तो जो CNG होंगे वो की होंगे मीथेन ठीक है जी। ध्यान रखना CNG तो बेसिकली क्या होता है मीथेन जी। क्वेश्चन नंबर 21 ब्रास इज़ एन अलॉय मेड ऑफ विच टू प्राइमरी कैमिकल मैटल्स दसो जी केड़ा तो यह आंसर ऑप्शन नंबर बी कॉपर ते जिंक। ब्रॉन्ज इज़ मेड ऑफ कॉपर एंड टिन द डिस्टिंक्शन इज़ हाईली टेस्टिड अक्रॉस पंजाब आ देखो जी आता रहता ना पेपर च एग्जाम ये भी लिखा हुआ भी ज़्यादातर केड़े पेपर से पूछा जाता है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज़ ओफन कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड दसो जी मास्टर ग्लैंड केड़ा है ये बंदा कन्फ्यूज हो जाता है एड्रेनल होंगे कि अपना आ होंगे C ऑप्शन नंबर यदा आंसर है C ठीक है ना जी। ऑप्शन नंबर C मास्टर ग्लैंड।
ਵਟ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। दसो जी आंसर की है। तो ਇਹਦਾ आंसर है ऑप्शन नंबर बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ starlight। The starlight undergoes continued refraction as it passes through layers of varying densities of air। ठीक है ना जी। चलो जी अगला देखते हैं। In the context of computer networking, what does the acronym URL stand for? ये पिछे जे मैंने जो टॉप करवाए सी क्वेश्चन टॉप 30 सी 40 सी सोचो जिन्हें देखिए वीडियो तो पता होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने सेम क्वेश्चन करवाया हुआ URL ਦਾ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना जी। चलो अगला देखते हैं। वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन हाउस होल्ड नेम फॉर विच कैमिकल कंपाउंड। दसो जी केड़ा। तो ਇਹਦਾ आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है ना जी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये भी छोटे छोटे जोड़े फॉर्मूलाज ने भी याद रखो। ठीक है ना जी। चलो अगला देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द लेवल ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द हेयर। दसो जी केड़ा है। तो ਇਹਦਾ आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाईग्रोमीटर। ठीक है ना जी। ਕੀ ਹੁੰਦਾ हाईग्रोमीटर मेजर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। हाइड्रोमीटर मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड बैरोमीटर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रैशर। पूरे कईयों ने लग रहा होएगा ना भी ये बैरोमीटर भी हो सकता है। तो आंसर में लिखा हुआ है कि बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रैशर नू। ठीक है ना जी। तो जो हाइग्रोमीटर है वो भी मेजर करता रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है ना जी। याद रखना। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। दसो जी केड़ी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी INS अरिहंत। इंडियाज़ लीड शिप ऑफ हर क्लास ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन सक्सेसफुली कमीशन इनटू एक्टिव स्ट्रेटेजिक सर्विस। ठीक है जी। याद रखना। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपोनेंट एक्ट एज एन एक्सपर्ट फिल्टर टू रिमूव यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ह्यूमन ब्लड। दसो जी केड़ी काम करती है। तो ਇਹਦਾ आंसर है ऑप्शन नंबर बी किडनी। ठीक है ना जी। ये सब नहीं पता होएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट टाइप ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूटिलाइज क्यूबिट टू प्रोसेस कैलकुलेशन एक्सपोनेंशियली फास्टर दैन क्लासीफाइड बिट्स। दसो इसका आंसर की हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्वांटम कंप्यूटिंग। चलो जी आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है वट इज़ द प्रिसाइज केमिकल टर्म फॉर द कॉमन इंडस्ट्रीयल कंपाउंड नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। दसो जी ब्लीचिंग पाउडर का की होंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का की होंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। की होंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो वाइडली यूज क्यों किया जाता है वाटर प्योरीफिकेशन लिए तो डिसइनफैक्टिंग एजेंट वास्ते। ठीक है जी। तो मैं इवें ही नवीं नवीं वीडियो लियादा रहूँगा। बाकी थोनू भी कोई डाउट है थोनू PDF चाहिए वीडियोज़ का तुसी मैनू DM कर सकते हो। तुसी वैसे मैनू YouTube के कमेंट सैक्शन ओपन ने तुसी कमेंट कर दो। जे थोने चैनल ज्वाइन करना टैलीग्राम चैनल तो तुसी सर्च कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय अमित चौधरी टैलीग्राम तो चैनल ज्वाइन कर लो। PDF चाहिए मैं उत्थे प्रोवाइड करवा दूँगा थोनू। होर भी कोई नोट्स चाहिए हैं तो आप थोनू प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है ना जी। सो लाइक करो सबसक्राइब करो शेयर करो मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय अमित चौधरी। थैंक यू सो मच।